शासकीय डॉक्टर वामन वासुदेव पाटनकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग के सभागार में मैं राष्ट्रीय संगोष्ठी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारी संगोष्ठी का विषय है इनोवेशंस एंड रिफॉर्म्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन हायर एजुकेशन। जैसा कि हमारा एक शेड्यूल प्रोग्राम रहा है, जिसमें हमारे बीच में हमारी कमिश्नर श्रीमती शारदा वर्मा मैडम मुख्य अतिथि के रूप में पधारने वाली हैं। कुछ विशेष कारणों से उन्हें थोड़ा सा विलंब हो रहा है, तो हमने ये सोचा कि एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन है हमारे महाविद्यालय के द्वारा डॉक्टर यास्मीन फातिमा परवेज मैडम का, जो A&A मेथोडोलॉजी इन रिवाइज्ड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क पर अपनी बात रखने वाली हैं। मैं इस मंच से सभी सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर RN सिंह सर, प्रिंसिपल VYT ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग, प्रिंसिपल बेमेतरा डॉक्टर PP चंद्रवंशी सर, प्रिंसिपल उदय कॉलेज डॉक्टर राजेश पांडे सर और हमारे DM साहब, और विशेष रूप से हमारे की नोट स्पीकर डॉक्टर GA घनश्याम जी और हमारी विशिष्ट वक्ता डॉक्टर अंजलि अवधिया मैडम। मैं इस मंच से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आदरणीय प्राचार्य महोदय की अनुमति से हम एक छोटा सा सेशन अभी आपके सामने रखने वाले हैं। हमारी केमिस्ट्री की प्राध्यापिका डॉक्टर यास्मीन फातिमा परवेज मैडम, NAAC के गाइडलाइन के अनुसार हम जो भी राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करते हैं उसमें एक सेशन हमें ऑनलाइन के रूप में करना है। विशेष तौर पर विषय भी वहाँ से आया हुआ है A&A मेथोडोलॉजी इन रिवाइज्ड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क। मैं डॉक्टर ऋचा ठाकुर, संयोजक नेशनल सेमिनार, आप सभी का एक सेमिनार हॉल में स्वागत करती हूँ। विशेष रूप से जो हमारे प्रतिभागी विभिन्न कॉलेजेस से आए हैं उनका तहे दिल से स्वागत। Very good morning to all of you. Namaskar. Dear August gathering and dignitaries of the dais, it's my privilege and pleasure to stand before you. And today this is a prestigious NAAC sponsored national seminar on innovations and reforms in teaching learning process in higher education. NAAC has sponsored this national seminar and bestowed us this responsibility to conduct the session on the theme of the seminar, and we have today all the eminent speakers in the later session to speak with their expertise. Now, being a host institute, NAAC guided us to conduct a very important session on online assessment and accreditation methodology in revised framework of NAAC. And now I take my role to be as a part of IPAC team of Government Dr. Vaman Vasudev Patankar Girls PG College to take you to the journey of NAAC, highlighting the revised accreditation framework of NAAC. And the entire teaching fraternity is almost acquainted with this. So, with the growing challenge in the education and the advancement in the quality, the higher education has to take the initiative, and the whole process of quality framework was taken up by NAAC. Without further delay, I will commence into the session with my slides. So, the presentation is all about the online assessment and accreditation methodology in revised framework of NAAC. And we all know that NAAC is a very prominent council working on quality, established in 1994. So I, from Host Institute, start my presentation. Next. So as we all know that NAAC accreditation is having a responsibility to provide quality status to the institutions of India, and all the content of my presentation has been taken from the website of NAAC. Let me first discuss the benefits of NAAC accreditation, and it's a privilege to the institutes which are getting the certification from the accredited body. Now,
My institute, in which presently I am working, has got B++, and this credential and credibility is enormous and motivate us to work further for the quality improvement. So please, actually आप ना इसको मुझे कंट्रोल में दे दीजिए या ये ले लीजिए कंट्रोल, क्योंकि मुझे बार-बार आपको नेक्स्ट बोलना पड़ेगा. So this is one of the most beneficial part that the institute, which is working very hard for getting the certificate for the NAAC accreditation. And the most important part after getting the certificate, every institute has the identification on its own mark, that it identifies the weakness, strength, and the opportunities, challenges, which we commonly known as SWOT, using continuous evaluation process, and the institution can understand the need of planning in the internal areas of the allocation of the resources. This is also one prominent part that we are able to determine that on which areas we have to allocate our resources and focus on. Next. So please pay attention because it's not working, okay? So the grade to the institute provides objective data from funding agencies, and this is also one most beneficial part, that the funding agencies are taking the concern for granting the funds to the institute which are getting the good grade in NAAC accreditation. It also elevates the institution image and offers new direction of the success. So every institution after getting accreditation elevates its own level and get the motivation to work more in the field of academics and research. Let us talk about the vision of NAAC. The NAAC holds the vision to make quality the defining element of higher education in India through a combination of self and external quality and sustenance initiative. The mission of NAAC, which I have taken are 5, the prominent feature as a mission of NAAC is to arrange for periodic assessment and accreditation of the institute, and further, it also stimulates the academic environment for promotion of quality of teaching, learning and research in higher education, and to encourage the self-evaluation, accountability, autonomy and innovation in higher education, and to undertake quality-related research studies, consultancy and training program. This is also one of the important mission of the NAAC. And to collaborate with other stakeholders of higher education for quality, evaluation, promotion and sustenance. So, when we see about the revised accreditation framework which has been initiated by the NAAC, this was initiated in the month of July 2017, which was launched by NAAC with the inputs from the stakeholders, feedback, best practices in A&A both at national and international levels, and experiences of NAAC. Revised assessment and accreditation methodology was prepared and extensively discussed in a national workshop organized during February 2017, and also core working group and sectoral working group were set up to discuss the deliberation, and the RF was then launched. The revised framework developed in partnership with the stakeholders have a very distinct focus on data capture of quantitative assessment and also the process details of qualitative assessment. The features of online assessment and accreditation, as we all are acquainted with, is now has a paradigm shift. And what is that shift? That it has been made highly ICT enabled, so we are able to submit all our data, both quantitative as well as qualitative, with the help of internet, online access. Okay, so we get the portal to add all the data, which is, we can say that it is ICT enabled, and it is also objective oriented.
oriented, transparent, scalable and robust. The eligibility criteria of higher education institute to enter into the NAC accreditation process is that every higher education which want to get NAC accreditation must have at least got what we can say the batches of the student for at least 2 sessions or 2 years, or we can say 2 batches of students must pass out from the institute at graduate level. And also the other institutes which are eligible for it they may be universities, central, state, private, deemed to be universities, and autonomous colleges, constituent colleges, affiliated colleges and accredited higher education institutes. They may get enter into the NAC process by reassessment or subsequent cycles, cycle 2, 3, 4 and so on. The most important part for the eligibility criteria is that all the institutions intending to apply for assessment need to be mandatorily uploading the information on AISHE portal. What is AISHE portal? It is All India Survey on Higher Education, and every HEI will get AISHE code, and that is what is requirement for registration into HEI. So this is a flow chart which I have tried to explain that how we can enter into the A&A, that is assessment and accreditation process of NAC, is that the HEI, okay, the HEI registration is done first. The first criteria, the first part is to register the higher education institute with the NAC. Then there will be a second part which is called as IQA submission, followed by SSR submission, and then there will be evaluation of SSR, followed by peer team visit, management process is complete, then other part. The process of HEI registration involves the filling up of the registration form provided by NAC, and then after the filling of the registration form by higher education institute, they are informed and NAC verifies and approves the registration, followed by HEI activation or login credential, and HEI is given the HEI portal in NAC site. Then after the approval from NAC, we enter into IQA submission process. Now what is IQA submission process? It is institutional information for quality assessment, and we fill up all the information which are there in IIQA, upload and support all the documents related to IIQA, then paying the IIQA fees online and then submit it finally. This IIQA is verified by NAC, and then we get a clarification report if there is any, and then it is verified and accepted. This is the first process, followed by SSR submission, and we all know that SSR submission is nothing but self-study report which has to be prepared and to be submitted in the portal. So all the SSR information which comprises of qualitative matrices and all the data files as per the templates provided, and all the what we can say following the SOP, then following the payment of the SSR, then all the process which we follow. Soon after the submission of SSR process, there is another very important process which is called as DVV, that is data validation and verification, and this is what is actually the DVV done by a third party, and which identifies any deviation which has been submitted by the institute. Then there is clarification, then it comes back to HEI, then all the responses are verified. Further DVV recommends the data update further, then second level verification is carried out, final DVV report which is submitted to the NAC.
So these are all the steps which we have to follow for getting NAAC accreditation. Very efficient process and user friendly. So the institutes which have not entered into the process may get all the support from NAAC's website. This is also a very important and crucial phase of NAAC accreditation, that is student satisfaction survey process. And the NAAC initiate the survey with 30% of the the data taken up from the institute, and then they send activation links to the student log in and submit their survey responses related to the academic, that is totally a total survey, academic survey. And then further, if the survey is monitored, 10% response is done, then the NAAC closes the survey. And if there is insufficient survey or response from the student, then NAAC again send the request to the remaining 70% of the student. Then the survey is closed by the NAAC, and the whole data is computed and it is converted into the grade point. So further, there is one more data validation by Implement Bibliometric Agency, which verifies all the research activities by HEI, and if there is any clarification, they ask with the HEI and try to complete the query from HEI. SSR, that is self-study report, as guided by NAAC, comprises of quantitative matrices, and further it is evaluated, and then the HEI is pre-qualified. So this is the step for the SSR QNM verification. Further, after the pre-qualification that the institute has pre-qualified for the submission, whatever it has been done, there is an on-site assessment peer review by visiting teams, and the on-site peer team visit is all done with the help of NAAC. That NAAC will nominate the persons or the experts from various academia, and then they are visiting to the HEI. So what is their actually assessment? It is based on qualitative matrix, and the quantitative and qualitative matrix ratio is distributed in the form of 2/3 and 1/3 ratio. That means 2/3 ratio of the total marks is scored by the HEI in terms of QNM, and 1/3 marks are scored with the help of peer review team. These are all the steps which are carried out by peer review team, and peer team visit is there in the HEI. One of the most important steps is that on completion of on-site evaluation of NAAC, it will be just getting what we can say criteria-wise grade point average pay, and we can just arrange. I mean, first of all, what happens that on-site assessment of the qualitative component is done with the help of SSR by visiting team, resulting in generation of a qualitative report, identifying the strength, weakness, opportunities and challenges, and assigning the scores on the basis of the performance of the team, on the basis of the performance. And on completion of on-site evaluation, NAAC will combine the scores assigned by the teams and the pre-qualifier scores as SSS to arrive at overall criteria-wise grade point average. This is done with the final computation. The final outcome will be placed for approval to the Executive Council of NAAC. This is the grading pattern which is introduced by NAAC, and we are acquainted. This is what is the grade allotted by NAAC. Letter grade A++ with CGPA is 3.51 to 4, 3.26 to 3.5 is A+,
3.01 to 3.25A and 2.76 to 3B++, at 2.51 to 2.75 is B+, 2.01 to 2.5 is B, and 1.51 to 2 is C, and then if D grade is obtained, then it is not accredited. This what I tried to show in the chart, the distribution of weightage across 7 criteria which the HEI has to work upon, and it includes 34 to 35 key indicators, and this is the gist of it. The total score is 1000. The 7 criteria heads are curricular aspect, teaching, learning and evaluation, research, innovations and extension, infrastructure, learning resources, student support and progression, and governance, leadership and management, and institutional best practices. This is the data which I have taken from NAC website, which shows that This is the data which has been taken from NAC website, which shows that the universities which are accredited, the number of accreditations of the universities total in the first cycle is 441 colleges, 9,413 colleges have been accredited in first cycle, and total higher education institutes which have been accredited are 9,854. The status is as on 21st August 2023. So this is a very high number of HEIs which are now getting a NAC accreditation. Next. Just I want to highlight the transformation story of rural and urban areas or urban colleges in Chhattisgarh state. NAC assessment and accreditation have been made mandatory by UGC from the year 2022, and the data which shows vast, very wonderful and amazing performance by all higher education institutes of Chhattisgarh which I have got it from one of the experts from SNQAC, is that 210 colleges now accredited out of 242 colleges which are there in existence, which are compatible for NAC accreditation. So this is a huge number which Chhattisgarh colleges have achieved. On the basis of this high performance by the state level quality assurance cell and IQAC cells of all the higher education institute of the college, our state government higher education department has achieved this award, which is called the Scotch Award for Education, and one of the credit goes to our Commissioner Mrs. Sharda Verma and the regime Dr. Ghanshyam sir, which he is today with us as a keynote speaker, and most of the higher education institutes are now accredited. So this is the performance of higher education institutes in Chhattisgarh state, and what we achieved actually with the NAC accreditation, which I found it wonderful and amazing, is that all the institutes are now having infrastructure improvement that can be visible, obviously, and updated dynamic websites of colleges. Almost all the colleges of the Chhattisgarh state are now having their dynamic websites and fully functional and updated. Then IQAC functionality has been improved, and they have gone very efficient in conducting all the IQAC activities, quality assurance programs, etc. Then ICT facilities enhancement and upgradation is also there in every institute. Most of the colleges are now Wi-Fi campus, and now the government colleges are able to mobilize their resources nicely. Then there is a drastic change in the data keeping and file keeping of the institute.
students' facilities and improvements are there. Enormous engagement of students have been done. Then higher education institutes are now able to draft their policy documents. Then there are several audits which are conducted by the institute, like energy and environment audits, etc. Then library enhancement is there. All the institutes are now subscribed with NLIST. They have the library software. Then opaque cataloging is also there. Teachers are upgraded and improved, and they have exhibited their professionalism. Then highlight of best practices of every institute is wonderful. Improved teamwork is also there among the faculties, and there is a development of feedback mechanism throughout online in every institute. So these are the achievements which have been seen drastically in all the institutes which are now NAAC accredited. Just I wanted to show you the glimpse of the transformation and with the help of a fit collection. So I think that is the last slide of mine. Little bit of, okay. So when I started my job in government college in 2020, I was given the charge of IQAC to be a IQAC coordinator and to carry out the NAAC accreditation in Government Eklavya College, Dondi Lohara. So I started from scratch. All my faculty members started from scratch, and we were able to, in the finishing process of NAAC accreditation, after the submission of SSR, in a year time, 1 साल के duration में, we were able to upgrade the infrastructure. You can see the drastic change in the infrastructure. We were able to design our IQAC room, the meeting room. The teachers were well acquainted with the use of ICT, presenting their presentation with the help of PowerPoint presentation, and most of the websites of all institutes were updated, dynamic, and full of latest information. I feel that every college is having the same thing. Then we were able to visualize our vision, mission, our objectives and goals and targets. Then we were having online feedback mechanism. Record keeping was extraordinarily fantastic. Then we were having the audit reports and then policy documents. So this was what is a transformation of most of the institutes which were entering into the NAAC process. So final achievement is what we expect through NAAC is that quality is not an act and it is a habit, and quality is everyone's responsibility. With this motto keeping in mind, I expect all the faculty members to please contribute to the quality, and that is what is a demand and the challenge to cope up, and NAAC motivate all of us to enter into this quality process. Thank you so much for listening patiently to my presentation with a little bit of snack, and I hope you will enjoy all this thing. Thank you so much. शारदा मैम को आने में कुछ समय और है, और चूँकि परंपरा के मुताबिक पहले दीप प्रज्वलन होता है, फिर की नोट होता है, उसके बाद बाकी सारी प्रोसीडिंग्स होती है, तो उसमें थोड़ा सा समय है, इसलिए हमने ये जो NAAC के गाइडलाइन के अनुसार जो प्रेजेंटेशन था वो हमने किया। मैं चाहती हूँ कि इसको हम एक इंटरैक्टिव सेक्शन जैसा भी मान सकते हैं। हमारे डिफरेंट कॉलेजेस से भी जो प्रतिभागी आए हैं वो अपनी कुछ बात रख सकते हैं, इसमें क्या परेशानी आई और उसे किस तरह से, जिस तरह से मैडम ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। एक टीम वर्क है, बेसिकली IQAC एक टीम वर्क है, किसी एक के संयोजक हो जाने से वो सारी चीज़ें हो नहीं जाती हैं। जब तक सब लोग नहीं मिलेंगे, सारी कमिटीज़ काम नहीं करेंगी, महाविद्यालय को बहुत अच्छा ग्रेड नहीं मिल पाएगा। तो यदि इस बारे में कोई आपस में अपनी परेशानियां या अपने इम्प्रूवमेंट या अपने जो आपने अचीव किया है वो बताना चाहते हैं, तो मैं उनका स्वागत करूंगी यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि हमारे पास A+ ग्रेड से हमारी अनुपमा अस्थाना मैडम बैठी हैं, IQAC कोऑर्डिनेटर। मैं चाहूँगी कि वो हम सभी को मोटिवेट करें और अपनी एक्सपीरियंस शेयर करें। डॉक्टर अनुपमा अस्थाना मैडम, जोरदार तालियां। नमस्कार सभी को।
all participants. On behalf of my institute, Government VYT PG Autonomous College Durg, I am sharing some team spirit words. सबसे पहले नेक एक दिन का काम नहीं है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, चाहे वो क्राइटेरिया 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 और 6 हो। नेक अभी चाहता है हमारी अप्रोच स्टूडेंट सेंट्रिक हो, एक्टिविटीज़ जो अभी हम करें वो स्टूडेंट सेंट्रिक एक्टिविटीज़ हो, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो, टीचर्स के लिए हो, उनका रिसर्च हो, पर ज़्यादा एक्टिविटीज़, टीचिंग लर्निंग रिफॉर्म्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कॉलेजेस अडॉप्ट कर रहे हैं और करेंगे नियर फ्यूचर में, वो केवल स्टूडेंट्स को देखते हुए करें, तभी हमको नेक में बेहतर ग्रेड मिलेगा। टीचिंग लर्निंग की बात अगर हम करें तो टीचिंग लर्निंग अभी हर कॉलेज के यंग माइंड्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, दे आर मोर एक्वेंटेड विद ICT टेक्निक्स। ICT techniques are more is more of demand of today by NEC. Online procedures, courses regarding SWAYAM, MOOC. NEC also want students to adopt and to get admit in courses of SWAYAM, MOOC, etc. apart from normal courses. Some value added course, हमारी बेस्ट प्रैक्टिस, जो बेस्ट प्रैक्टिस है क्राइटेरिया 7 अगर हम कहें तो बेस्ट प्रैक्टिस में वैल्यू एडेड कोर्सेज जितने कॉलेजेस रन कर रहे हैं, नए कोर्सेज हम करा रहे हैं, 30 आवर्स के हो सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया है। स्टूडेंट्स करिकुलम को सपोर्ट करने के लिए वैल्यू एडेड कोर्स, हमारे वैल्यूज़ को इन्हेंस करने के लिए जो कोर्सेज हैं उन्हें हम और इम्प्लीमेंट करें, स्टार्ट करें। क्राइटेरिया 3 कॉलेजेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हमारे ऑटोनोमस कॉलेजेस में देखिए, हमारे कॉलेज में क्राइटेरिया 3 हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था और हम उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। रिसर्च एंड इनोवेशन, रिसर्च एक्टिविटीज़ कॉलेज की जहाँ पर हमारे पब्लिकेशंस होने चाहिए, तो हर फैकल्टी मेंबर से रिक्वेस्ट है कि वो सभी मेंबर्स एटलीस्ट एक पेपर, चाहे आप ग्रुप में करें, इंटरडिसिप्लिनरी वर्क करें, एक पेपर ज़रूर उस पर काम करें, फोकस करें। रिसर्च में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पीजी कॉलेजेस, ऑटोनॉमस कॉलेजेस उसमें सभी फोकस कर सकते हैं। हमारा कॉलेज रिसर्च में स्टेट में आउटस्टैंडिंग हमारी परफॉर्मेंस रहती है और है अभी भी। हाई इम्पैक्ट फैक्टर स्कॉपस वेब ऑफ साइंस में हमारे पब्लिकेशंस हो, ये नेक चाहता है। नेक की टीम, उनकी जो टीम आती है नेक टीम, उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं फोकस होता है कि रिसर्च एक्टिविटीज़ क्या है, क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल है एक्सपर्ट्स, रिसर्च को वो फोकस करते हैं, तो अननोइंगली वो रिसर्च पे उनका ध्यान जाता है कि बच्चों के पेपर में कौन से प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हैं, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हो, पर हर बच्चे का प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। हम एक छोटी सी टास्क दें, मैं केमिस्ट्री की हूँ, छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि वाटर एनालिसिस है, सॉइल एनालिसिस है, हम बिल्कुल पास ले जा सकते हैं बच्चों को, किसी पॉन्ड में या किसी पास के एरिया में ले जाएं, रूरल बैकग्राउंड के बच्चे जा सकते हैं, उनको उस डायरेक्शन में एक छोटा सा टास्क दे दें कि आपको प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स मस्ट कैरी आउट 1 प्रोजेक्ट वर्क, अभी हमारी नीड है और नेक में उसके पॉइंट है। बहुत आसान है करना, हम लोग भी उस डायरेक्शन में, सर बैठे हुए प्रिंसिपल सर उस डायरेक्शन में भी काम कर रहे हैं कि थोड़ा हमको और बढ़ाना है कि सभी स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट वर्क में इन्वॉल्व करना है। तो कोशिश हो, चाहे वो आर्ट्स में हो प्रोजेक्ट, फील्ड वर्क हो सकता है, या साइंस में लैब्स में हो सकता है, नेशनल लैब्स में हो सकता है, अगर फैसिलिटीज़ हैं आपके पास तो प्रोजेक्ट वर्क में बच्चों को इन्वॉल्व करिए और छोटी सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कराइए।
बाकी नेक में जो हमारा टीम वर्क था, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2, हमने टीम्स में आप इस बांटते हैं, जैसे सभी टीम मेंबर्स काम करते हैं, हर क्राइटेरिया को सम अप करते हैं, फिर एक कॉमन डिस्कशन होता है कि हमने आज क्राइटेरिया 1 को प्रेजेंट किया, उसमें क्या क्या हमारे लैकुनास हैं, क्या हमारी कमी है, उसको हमने देखा। फिर क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 3, 4, 5, इसमें एक नेक और चाहता है कि हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस ऐसी हो जो लगातार 5 इयर्स तक होती रहे और उससे कुछ हमारा आउटपुट हो। मतलब जैसे हमने एक एक्शन प्लान बनाया कि हम गर्ल्स को, हम स्टूडेंट्स को स्पेशली उनको कैटर करेंगे, उनको ज़्यादा एजुकेट करेंगे या अलग से उनकी कुछ मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो पूरे 5 साल या कंटिन्यूसली हम उन गर्ल स्टूडेंट्स को, चाहे वो किसी भी बैच से हो, उनको हम कैटर कर रहे हैं, उनके एकेडमिक स्कोर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। उसका आउटपुट क्या है? एक्शन प्लान हमने बनाया, एक्शन प्लान के साथ क्या हमने काम किया थ्रू आउट द ईयर डिपार्टमेंट वाइज, क्या उसका आउटपुट हुआ। तो आउटपुट नेक्स्ट चाहता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसका प्रॉपर एक राइटअप बने कि उसमें आपका क्या आउटपुट रहा। जैसे बच्चे अगर आ रहे हैं फर्स्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर में MSc या MA में उनकी क्या परफॉर्मेंस रही, ये हमें एज आउटपुट देना होगा। फील्ड वर्क करा सकते हैं बच्चों की, उनकी रिपोर्ट्स बना सकते हैं। तो नेक हमेशा ये चाहता है कि जो भी काम हम कर रहे हैं वो स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच को देखते हुए हो। ऑफिस स्टाफ, हमारा ऑफिस सेक्शन या हमारा IQAC टीम के साथ हर जो भी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार या प्रोजेक्ट या कुछ अलग हटके काम कर रहे हैं, इन कोलैबोरेशन विद IQAC टीम होना चाहिए। नेक हमेशा ये चाहता है कि हमारी IQAC टीम कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो हर डिपार्टमेंट को कितना सपोर्ट कर रही है। तो एक कैलेंडर बनाना चाहिए। मेरा सजेशन है कि एक हर कॉलेज एक कैलेंडर बना ले विद IQAC टीम कि हम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है तो ये काम आप डिवाइड करिए, बॉटनी है तो ये काम वो करेगा इस साल, फिजिक्स है तो ये काम करेगा, इकोनॉमिक्स है तो स्टूडेंट्स के सर्वे के काम करेंगे। हर रोटेशन में हर डिपार्टमेंट को काम डिस्ट्रीब्यूट करिए, जिससे IQAC के साथ कोलैबोरेट करके हर डिपार्टमेंट उस एक्टिविटी को बेंचमार्क को देखते हुए कंप्लीट कर पाए। ये हमारे कॉलेज का सबसे इम्पोर्टेंट जो रहा ग्रेड लेने में A+, हमारे प्रिंसिपल सर का फुल टाइम सपोर्ट, हमको एक फ्री हैंड देना कि बस आपको काम करना है। पूरे फैकल्टीज़ को एक फ्री सपोर्ट मिला और इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलता था, फ्री हैंड मिलता था कि हम बहुत आसानी से हर चीज़ करते रहे। डिफ़िकल्टीज आती हैं पर एक सपोर्ट रहता है हमारी हायर अथॉरिटी का, वो हमारे प्रिंसिपल सर ने सपोर्ट किया। हमारी पूरे कॉलेज की टीम जूनियर मेंबर्स से सीनियर मेंबर्स तक एक जब टास्क मिलता है तो मिल के काम करते हैं। मैं बिल्कुल हर फैकल्टी मेंबर, कॉलेज के मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम केवल एक टीम रहें, तभी हमारा नेक में अच्छा ग्रेड होगा और हम हमेशा स्टेट को आगे ले जाएंगे। थैंक यू। अनुभव होता है और आप शेयर करें तो नए लोगों को भी सीखने का मौका मिलता है। मैंने अमिता सहगल मैडम के अंडर में बहुत सालों तक काम किया और उसके बाद मुझे IQAC संभालने का मौका मिला। तो ये तो बस शुरुआत है और धीरे धीरे जो आपने कहा कि टीम वर्क ज़रूरी है, तो हमने भी कुछ अपने महाविद्यालय में इसी तरह से टीम बनाई हुई है और हर डिपार्टमेंट को हमने डिफरेंट डेज और डिफरेंट एक्टिविटीज़ सौंपी है ताकि किसी एक पर भार ना हो, सब मिल कर के कॉलेज की सारी एक्टिविटीज़ को करें और फॉलो करें उस कैलेंडर को, ताकि हर तरह की एक्टिविटी, चाहे वो स्टूडेंट सेंट्रिक हो, चाहे वो टीचर से रिलेटेड हो, चाहे वो ऑफिस स्टाफ से रिलेटेड हो, अलग अलग एक्टिविटीज़ हम कराएं। और स्पेशली आपने जो बोला कि रिसर्च पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तो वाकई में हमारे जो कॉलेजेस हैं रिसर्च के मामले में कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम टीचर्स की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम रिसर्च पेपर्स लिखें, कोलैबोरेशन के साथ लिखें, अकेले ना लिखें, आप 2 या 3 के साथ लिखें और
उसे अच्छे जर्नल्स में यूजीसी केयर लिस्ट में छपवाएं, ताकि महाविद्यालय में ये जो लैकुना है, ये जो नंबर छूट जाते हैं, उसे हम प्राप्त करने की कोशिश करें। नेट में अब तो धीरे धीरे काफ़ी परिवर्तन आए, हम सभी को नेट के जो फॉर्मूलेज हैं वो समझ में आने लगे हैं। जो पहली बार हमारे कॉलेज में सबसे पहले सामना किया था, जो क्राइटेरिया 7 क्राइटेरियाज आए थे, उसके हिसाब से प्रेजेंटेशन देना है, और उसमें भी सिस्टम बहुत सारे बदले, की पॉइंट्स बदले। तो हमारे सामने 2 महीने का बस समय था उन की पॉइंट्स के आधार पे प्रेजेंटेशन तैयार करने का। हमने कोशिश की, लेकिन अनलकीली कोरोना आ गया और वो 2 साल हमारा वहीं का वहीं लॉक हो गया। और सबसे शुरुआती एक्रेडिटेशन में हमारा कॉलेज फंसा। बोलते हैं ना, यदि कॉपी चेक होने आती है तो शुरू के 5-6 कॉपीज जो है बड़ी कड़ाई से टीचर चेक करते हैं, हम सभी जानते हैं। बाद में हम दे देते हैं, अरे यार कितना चेक करेंगे। तो वो शुरू की 4-5 कॉपी में हमारा कॉलेज था, तो हम तो A ग्रेड की उम्मीद लगाए थे। लेकिन जो भी है, ये उनका एक्रेडिटेशन है, हमें B++ मिला। हम और आगे करने की कोशिश करेंगे, और सामूहिक प्रयास से ये होता है। बार बार मैं उस चीज़ को कह रही हूँ। तो मैं चाहूँगी कि किसी दूर दराज के कॉलेज से जो हमारे प्रतिभागी आए हैं, वो आए और अपनी परेशानियों को शेयर करें, क्योंकि हम शहर में बैठे हुए हैं, बहुत सारी सुविधाएं हमें मिल जाती हैं, नेटवर्क कनेक्शन हमें मिल जाता है, तो हमारी सुविधाएं थोड़ी कुछ अलग तरह की होती हैं। लेकिन जो दूर दराज में, जिन्हें रोज़ अप डाउन करना पड़ता है, वो किस तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। मैं चाहूँगी कि कोई हमारे पार्टिसिपेंट आए। मैडम भी शायद आती हैं, सर में लाने चले गए हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि हम एक दूसरे के सुख दुख बांट सकें। तो मैं चाहूँगी कि कोई आए। डोंडी लोहारा से भी आए हैं, चौकी से भी आए हैं। जी सर। सर आपका नाम? डॉक्टर JP सोनी सर। सर आप अपना परिचय भी दीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कीजिएगा। आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर JP सूर्यवंशी, अभी समन्वयक हूँ गवर्नमेंट LCS कॉलेज नंबर 34। अभी फिलहाल हमारा जो है नेट का मूल्यांकन हुआ है, और हमारा कॉलेज जो है C से B+ तक का सफ़र अभी जर्नी किया है। और मैं जो है GA घनश्याम सर का स्टूडेंट रहा हूँ साइंस कॉलेज से, और अभी मेरी पोस्टिंग हुई है हम मगर चौकी में पिछले साल। तो एक कहा जाए तो ट्राइबल एरिया के कॉलेज से होने के नाते, जैसे जो हमारा एलुमनी सेक्शन है, खासकर हम लोग जो है जो टीचर हैं वो पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, और पेरेंट्स जो है अपने काम में इतना बिजी रहते हैं कि आते ही नहीं, तो उसमें हमारा नंबर कटा। साथ ही साथ कॉलेज तो इंफ्रास्ट्रक्चर में खासकर टीचिंग रूम वगैरह के लिए बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन हॉस्टल है, खासकर हमारा जो नंबर कटा, और हमारा जो है पॉइंट जो आया था 2.67 था, और थोड़ा सा कहीं कुछ रहता है तो B++ आ जाता। तो उसमें जो है हॉस्टल की कमी हमारे कॉलेज में है, ऑडिटोरियम जो है इनसफिशिएंट है, और ख़ासकर जो बच्चे हैं वो रूरल एरिया से हैं, तो बहुत जल्दी आते भी हैं और बस को देखते हुए अपने समय से पहले ही चले जाते हैं। तो एक उसमें भी हम लोगों को डिफ़िकल्टीज आती है कि बच्चे लोग जो है पूरे टाइम तक साथ नहीं दे पाते, और हम लोग भी उनको जो है फोर्स नहीं कर पाते कि वो लोग समय तक रुके। अधिकांश जो बच्चे हैं 3:30 बजे के बाद जो है दूर दूर से आते हैं, 20-25 किलोमीटर से, और बस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, उस कारण से जो है बच्चे चले जाते हैं। तो एक वो हो गया, और ख़ासकर जो अभी हैं तो हमारे यहाँ थोड़ा सा रिसर्च में पिछड़े हुए हैं हम लोग, वहाँ भी रिसर्च लैब वगैरह नहीं बना है। अभी जस्ट मुख्यमंत्री जी ने जो है अभी PG कॉलेज घोषणा किया है, उसमें आया हुआ है। तो जैसे जो NAC टीम आई थी, तो उनका कहना है कि हमारे कॉलेज में कम से कम जो गर्ल्स हॉस्टल है उसकी व्यवस्था हो जाए, लाइब्रेरी है उसकी व्यवस्था अच्छी से हो जाए, और
ऑडिटोरियम वगैरह जो है उसकी व्यवस्था अच्छे से हो जाए तो हमारा कॉलेज और अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकेगा। और लेकिन अभी जैसे रूसा वगैरह सिर्फ फंडिंग जो आने वाली है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही शायद कि जैसे पूरे ज़िले में शायद 10 करोड़ का अलॉटमेंट आने वाला है या फिर जो 5-5 करोड़ का आया हुआ था कॉलेज वाइज उसमें हमारे कॉलेज का नाम नहीं है, तो उसमें हम लोगों को ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर फंडिंग नहीं होगी तो हमारे पास हॉस्टल नहीं बन पाएंगे, ऑडिटोरियम नहीं बन पाएंगे, या फिर जो खेलकूद के लिए है विशेष सामान वगैरह लाना है उसके लिए जो है प्रॉब्लम आएगी। तो अगर वो सब हो जाता है तो हम जो है अपना जो टीम बनाए हैं अभी यंग बैच बहुत सारे जो नए नए असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वहाँ उनकी भर्ती हुई है, अगर वो सब मिलके जो है अगर हमको कंट्रीब्यूशन मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से तो हम और अच्छे से परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। यहाँ जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। मैं नीचे चली गई थी, मैं पूरी तरह से सुन नहीं पाई, लेकिन थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां। आप सभी को नमस्कार। शासकीय डॉक्टर वामन वासुदेव पाटनकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा आयोजित नेशनल लेवल सेमिनार इनोवेशन एंड रिफॉर्म्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार एवं सुधार में आप सभी का सम्मानित विद्वज्जनों का मैं स्वागत करती हूँ। नेक्स्ट प्रायोजित इस सेमिनार की मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीमती शारदा वर्मा, कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से बेहतर और कोई मुख्य अतिथि हो ही नहीं सकता था, जिनके दिशा निर्देशन में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा ने नैक मूल्यांकन में पूरे देश में अपनी गुणवत्ता का परचम लहराया है। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर RL सिंह सर, प्राचार्य डॉक्टर शासकीय BYT ऑटोनॉमस PG कॉलेज दुर्ग, जिनके महाविद्यालय ने आदरणीय मैडम के स्वप्न को A+ ग्रेड के साथ साकार किया है। हमारे प्राचार्य डॉक्टर सुशील चंद्र तिवारी सर, अपर संचालक दुर्ग डिवीजन, साथ ही उपस्थित डॉक्टर राजेश पांडे सर, प्राचार्य उदय महाविद्यालय, डॉक्टर TP चंद्रवंशी सर, प्राचार्य बेमेतरा महाविद्यालय, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। इसके साथ ही हमारे पास वक्ता के रूप में उपस्थित हैं कीनोट स्पीकर डॉक्टर GA घनश्याम और हमारी विशिष्ट वक्ता डॉक्टर अंजलि अवधिया मैडम, प्राध्यापक फिजिक्स नागार्जुन स्नातकोत्तर कॉलेज ऑफ साइंस रायपुर, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। साथ ही प्राचार्य सर से निवेदन है कि दीप प्रज्वलन के साथ इस संगोष्ठी की शुरुआत हमारे मुख्य अतिथियों से कराएं। आप सभी से निवेदन है कि छत्तीसगढ़ राजगीत अर्पा पैरी की धार के लिए हम अपने स्थान पर सम्मानपूर्वक खड़े हो जाएं।
प्राचार्य सर से निवेदन है कि माननीय श्रीमती शारदा वर्मा मैडम का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर डी.सी. अग्रवाल सर से निवेदन है कि वे हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर आर.एन. सिंह सर का स्वागत करें। हमारे की नोट स्पीकर डॉक्टर जी. घनश्याम के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर के. राठी सर को बुलाना चाहूंगी। हमारी विशिष्ट वक्ता डॉक्टर अंजलि अवैध्या के स्वागत के लिए डॉक्टर मीरा गुप्ता मैडम को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। हमारे प्राचार्य डॉक्टर सुशील चंद्र तिवारी सर, अपर संचालक 2 डिवीजन के स्वागत के लिए मैं डॉक्टर एम. शोएब को बुलाऊंगी। इसके साथ ही इस सभागार में उपस्थित माननीय पी.टी. चंद्रवंशी सर, राजेश पांडे सर, विज्ञान महाविद्यालय से आए हमारे सीनियर प्राध्यापकगण, हमारे महाविद्यालय के सीनियर प्राध्यापकगण, इस सभागार में उपस्थित समस्त प्रतिभागी, इसके अलावा जो लाइव स्ट्रीम प्रोग्राम चल रहा है उससे जुड़े हमारे सभी प्रतिभागियों का मैं डॉक्टर ऋचा ठाकुर इस सेमिनार के संयोजक की हैसियत से आपका स्वागत करती हूँ। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा शिक्षा में मूल्यों और नैतिकता के संदर्भ में दिशा निर्देश दिए गए हैं जो छात्रों में महत्वपूर्ण कौशल और नैतिकता का विकास करेंगे। इसी को लेकर के एनईपी जारी हुई। एनईपी के साथ ही साथ और भी विभिन्न कार्यक्रम जारी हुए जिन्हें हम मूल्य प्रवाह, सतत या गुरु दक्षता आदि योजनाओं के नाम से जानते हैं। आज इस सेमिनार के माध्यम से हम इन समस्त बिंदुओं पर विचार करेंगे। हमारे जो विशिष्ट वक्ता हैं, हमारे कीनोट स्पीकर हैं, वो इन सारे जो टॉपिक्स हैं जो सेमिनार को कवर करते हैं उस पर बात करेंगे। निश्चित तौर पर इन गुणी वक्ताओं के माध्यम से कुछ निचोड़ हम निकाल पाएंगे। सर्वप्रथम मैं संस्था प्रमुख अपर संचालक डॉक्टर सुशील चंद्र तिवारी सर जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो स्वागत उद्बोधन दें। आज की हमारी इस राष्ट्रीय कार्यशाला में उपस्थित परम सम्माननीय श्रीमती शारदा वर्मा जी, आयुक्त शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन, हमारे अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आर.एन. सिंह जी, हमारे आज के इस सेमिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर जी. घनश्याम, डॉक्टर अंजलि अवधिया, हमारे दुर्ग संभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर पी.पी. चंद्रवंशी जी, डॉक्टर राजेश पांडे जी, उपस्थित सभी IQAC के कोऑर्डिनेटर्स, प्रभारी प्राचार्य और हमारे अतिथि व्याख्याता जनभागीदारी में। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि पूरे प्रदेश में नए को लेकर जब हमने मिशन मोड पर काम करना शुरू किया और उसका परिणाम है कि 211 महाविद्यालय हमारे नेट से मूल्यांकित हो गए पूरे प्रदेश में और इसका अवार्ड भी हमारे प्रदेश को प्राप्त हुआ। और यह सब हमारे उच्च शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री जी के आह्वान से और हमारे विभाग के आयुक्त श्रीमती शारदा वर्मा जी के कुशल मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से हम लोग ये मुकाम पाने में सफल हुए। हमारे दुर्ग संभाग में 53 शासकीय महाविद्यालयों ने अपना मूल्यांकन कराया 68 कॉलेज में से, और कुछ महाविद्यालय जो पात्रता पूर्ण कर चुके हैं उनके भी प्रक्रिया हमारी जारी है। नए मूल्यांकन कराने के बाद हम लोगों ने यही विचार किया कि इसको स्थायी रूप दिया जाए, लगातार सतत इसकी मॉनिटरिंग की जाए और नेक के जितने भी पैरामीटर्स हैं हमारे उसके अंतर्गत हम काम लगातार करते रहें और हमारी जो गुणवत्ता है जिसको पूरे देश ने सराहा है वो लगातार स्थायी रूप से बनी रहे। और इसी का परिणाम कि बेमेतरा हमारे दुर्ग विज्ञान महाविद्यालय में और अभी हम
इन्हीं बिंदुओं को लेकर, इन्हीं पैरामीटर्स को लेकर कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं, सेमिनार आयोजित कर रहे हैं, जिससे कि नेक की जितनी भी अपडेट्स हैं उससे हम सब परिचित हो सकें और अपने महाविद्यालय में उस हिसाब से हम अपनी कार्य योजना बनाकर काम करें, जिससे कि जब अगला नेक मूल्यांकन का चरण आए तो हम कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ कह सकें कि हमें ये ग्रेड मिलेगा और हमने इतना काम किया है। आप सबने हमेशा HRQAC को भी, IQAC को भी सहयोग दिया है और लगातार हमारे प्राध्यापकों ने भी इस दिशा में काम किया है। उन सबको मैं बहुत सारी बधाई देता हूँ और आज इस कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आभार सर। मैं निवेदन करती हूँ हमारे विशिष्ट अतिथि ओजस्वी वक्ता माननीय डॉक्टर आनंद सिंह प्राचार्य ग्रेड कॉलेज शासकीय VYT कॉलेज को, जिन्होंने अपने दीर्घ प्राध्यापकीय और प्रशासनिक अनुभव के साथ हम सबको अनुभव अपना साझा किया है। सम्मान के साथ आदरणीय सर। शासकीय पाटनगर महाविद्यालय द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर शारदा वर्मा जी, आयुक्त शिक्षा, हम सबकी आशीर्वादक, इनके नेतृत्व में राज्य ने कई महत्वपूर्ण आयाम तय किए हैं। मैं आदरणीय मैडम का जिले के डीन कॉलेज होने के नाते इस संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम सबके लिए सौभाग्य है कि आदरणीय मैडम का नेतृत्व हमको मिला है और हम लोगों ने जिस तरह से पूरे राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, क्योंकि मैं नैक में जाता हूं जब बाहर, मैडम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मैं कर्नाटका गया हुआ, कर्नाटका में भी अभी या जहाँ जाता हूँ कहते हैं छत्तीसगढ़ ने ये गौरव कैसे हासिल किया। तो मैं बहुत ही गर्व के साथ कहता हूँ कि हमारी उच्च शिक्षा विभाग की आदरणीय डॉक्टर शारदा वर्मा मैडम के नेतृत्व में और उनकी पहल का परिणाम है कि हमने यह मुकाम आज हासिल किया है। और इस मुकाम को हम सबके लिए एक चैलेंज भी है कि जो हमने एक मुकाम हासिल किया है, इस मुकाम को हम स्थिर बनाए रखें। इसके लिए ही आदरणीय डॉक्टर सुशील तिवारी सर निरंतर प्रयास हैं। उनका सदैव ये प्रयास रहता है कि कम से कम संभाग स्तर में हम लोग निरंतर ऐसी कार्यशालाएँ करें, जिसका परिणाम है कि बेमेतरा और हम दुर्ग जिले में ऐसे आयोजन हुए। मैं विशेष रूप से जो हमारे साथी आए हैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि नए प्रक्रिया में हम लोगों के साथ ड्रॉबैक ये है कि जब नए आता है तो हम लोग एकदम मिशन मोड में भर जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से लेथार्जिक जो प्रक्रिया हो जाती है वो शुरू हो जाती है। एक्चुअली क्वालिटी असेसमेंट जो है ये कंटिन्यू प्रोसेस। अगर नैक हो गया तो नैक के नेक्स्ट डे से हमारा अगला जो है प्रॉस्पेक्टिव प्लान बन जाना चाहिए, 5 साल का प्लान बन जाना चाहिए, क्योंकि अब तो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो गया है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे महाविद्यालयों को बहुत अच्छे ग्रेड मिल रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो महाविद्यालय जो अच्छे ग्रेड अभी मिले लगे पिछले 1 सालों में, उसका ये बेसिक कारण है बेंचमार्क नैक ने डिक्लेयर कर दिया है। अब हमारे सामने पहले हमें मालूम था हमें करना क्या, कितनी सेमिनार करना है, कितनी संगोष्ठी करना है, कितना पेपर पब्लिश करना है, कितने टीचर होना चाहिए, क्या हो, ये सब चीज़ें हमको नहीं मालूम। हम लोग अंधेरे में अपनी कोई तैयारी करते थे, लेकिन वर्तमान में पिछले 1 साल से बेंचमार्क डिसाइड हो गया है कि हमें कितने सेमिनार करने हैं, कितने पेपर पब्लिश करने हैं, कितने प्रोजेक्ट होना चाहिए। हमारे पास सभी चीज़ें पूर्व से तय हो चुकी है। ये आपके बेंचमार्क का चुका है, जिससे हमारा प्रॉस्पेक्टिव प्लान बनाना हमको ज़्यादा आसान है। तो हम सबसे पहला काम करें कि हम अपना प्रॉस्पेक्टिव प्लान बनाएं और प्रॉस्पेक्टिव प्लान बनाने के बाद हम उस पर कार्यवाही प्रारंभ करें। मैं सोचता हूँ कि हमारा जो ये नैक मूल्यांकन है ये हो चुका है, लेकिन अब बेहतर ग्रेड की ओर हम लोग अग्रसर हों और इसको कंटिन्यू बनाए सकें। अभी मैं जरूर मैडम की उपस्थिति में, क्योंकि हमारा उच्च शिक्षा विभाग निरंतर इस बात का प्रयासरत है कि हमको संसाधन मिले, लेकिन अभी चौकी से हमारे मित्र आए थे, वो कह रहे थे, तो मैं जरूर उसमें चाह रहा था, लेकिन मैं उसमें नहीं बोला। मैंने कहा सभी के साथ सामूहिक रूप चर्चा करूँगा। हम लोग ये भी देखें कि हमारे रिसोर्सेज कहाँ से हमको मिल सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि रिसोर्सेज को फाइंड आउट करें। मैं चौकी के मित्र हमारे हैं उनको बताना चाहूँगा कि बस्तर विकास प्राधिकरण जो है उसमें इस तरह के फंड होते हैं। आदरणीय मैडम बैठे वित्त विभाग को पूरी तरह से संचालित करती हैं, ऐसे विषयों के लिए है पैसा। DMF जो है वो शिक्षा विभाग स्वास्थ्य के लिए प्राथमिकता के आधार पर जो DMF से पैसे मिल रहे हैं। इस तरह से जो स्थितियाँ हैं उन पर जरूर हम लोग ध्यान दें
बस्तर प्राधिकरण जो ट्राइबल एरियाज के हैं। दूसरी बात है जो लोग जिले से जुड़े हुए हैं कलेक्टर से मिलकर के डीमअप से राशि के लिए प्रयास करें। हमने अभी प्रयास किया था और हमें सफलता मिली डीमअप। तो रूरल एरिया के डीमअप में बहुत पैसा है, इसलिए ध्यान रखें डीमअप से प्रयास करें। और तीसरी चीज़ है, मैं जरूर एक चीज़ चाहूँगा, मैं IIT जो भिलाई है उसके साथ सतत संपर्क में हूँ। IIT भिलाई के पास बहुत सी राशि पड़ी हुई है, अनएक्सपेंड मनी है। वो चाहते हैं कि ट्राइबल एरिया के जो लोग हैं वो सोसाइटी बेस्ड कोई अगर प्रोग्राम है, उनके पास कोई प्रोजेक्ट है तो उनके पास वो प्रस्तुत करें और वो उसके पैसा देने पर तैयार हैं। उनको मार्च तक अपनी जो है रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो जो भी ट्राइबल एरिया के लोग हैं जो काम करना चाहते हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो लोग IIT भिलाई को जो है अपना प्रस्ताव भेजें। लेकिन प्रस्ताव बेसिक ये होना चाहिए, उसमें आउटपुट हो, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, तभी वो ऐसे प्रस्ताव स्वीकृत हो पाएंगे। ये हमारे लिए बहुत आशा की किरण लेकर आया IIT, उससे भी हम कोलैबोरेट होकर काम कर सकते हैं। आदरणीय मैडम ने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया है, हम उनको सुनना चाहेंगे। मैं पुनः आदरणीय मैडम का हार्दिक स्वागत करते हुए, वंदन करते हुए, आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए अपनी बाणी बनाता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती शारदा वर्मा मैडम, कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दूरदर्शिता से छत्तीसगढ़ की उच्च शिक्षा को एक नया आसमान दिया है। हमने एक नया सोपान तय किया है। अत्यंत सम्मान के साथ आदरणीय मैडम। दुर्ग जिले में स्थित आपके कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सौजन्य से जो आप लोगों ने यहाँ कार्यशाला आयोजित की है और आज के कार्यक्रम में उपस्थित इस संस्था के प्राचार्य और दुर्ग संभाग के अपर संचालक के भी पद पे प्रभार में हैं श्री तिवारी जी, श्री RN सिंह साहब, श्री घनश्याम जी, अंजलि अवधिया मैम, ऋचा ठाकुर जी, समक्ष में स्थित संभाग के विभिन्न महाविद्यालयों से आए हुए वरिष्ठतम प्राचार्यगण, उच्च शिक्षा विभाग के अन्य सभी विद्वजन जो आज इस कार्यशाला में यहाँ भाग ले रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपने मुझे सुनने के लिए अपना यहाँ समय भी निकाला और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके आमंत्रण में इतना आग्रह रहता है कि चाह करके भी कभी मना नहीं किया जा सकता है। निश्चित रूप से ये आप सभी का स्नेह है और ये मैं तो इसको परस्पर स्नेह भी मानती हूँ। भले समय की कमी के कारण आपसे मेरा उतना संवाद नहीं हो पाता है, लेकिन निश्चित रूप से जब तक विभाग में हो तब तक इसको कहने में कोई संदेह ही नहीं है कि आप सभी के प्रति मेरे मन में बहुत ही स्नेह और सम्मान है। इस कार्यशाला के जो तकनीकी सेशंस होंगे जहाँ पर आप टीचिंग और लर्निंग की जो प्रोसेस है उसमें क्या इनोवेशंस हो रहे हैं, क्या सुधार हो रहे हैं, उनके बारे में काफ़ी डिटेल से अपने एक्सपर्ट से उनके विचार सुनेंगे, समझेंगे और आगे चल के उसका उपयोग भी करेंगे। मैं तो इस कार्यक्रम के जो शुभारंभ के अवसर पर मुझे संबोधित करने के लिए जो आमंत्रण मिला है उस संदर्भ में मेरा सिर्फ यही कहना है कि मुझे अब आप लोगों के बीच में आके एक बहुत ही हर्ष की अनुभूति इस विषय को लेकर होती है कि जैसे कभी कभी अपन कोई छोटा पौधा लगाते हैं तो उसको लगाने के समय अपन बहुत ही सजग रहते हैं कि उसमें बराबर मात्रा में पानी होना चाहिए, खाद होना चाहिए, मिट्टी सही होनी चाहिए, उसको धूप ना लगे, उसको ठंड भी मत लगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम उस स्टेज से बहुत थोड़े से ऊपर उठ चुके हैं और वो पौधा जो है जो सेल्फ सस्टेनेबल मोड में आ गया है। जब आप लोग इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, स्व प्रेरणा से करते हैं, बिना किसी के कहे करते हैं, उसमें आपकी सहभागिता भी आपकी अपनी रुचि और अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार होती है, तो देख करके इस हर्ष की अनुभूति होती है कि हमने जो काम शुरू किया था सभी ने मिल करके, पूरे विभाग ने, हमारा उच्च स्तरीय जो नेतृत्व था, माननीय मंत्री महोदय जी का जो मार्गदर्शन था, सचिव महोदय का जो निर्देश था, उन सबको लेके पूरे समूह के रूप में हमने जो काम शुरू किया था, जो एक बीज का रोपण किया गया था, तो ऐसा लगता है कि अब उसकी शाखाएं निकलने लगी हैं और हम उस बीज को रोपते समय जो अब एक लक्ष्य लेकर चले थे कि आप सभी के बीच में जागरूकता आएगी,
सभी चीज़ें एक दिन में परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन किसी भी संस्था के मन में, किसी भी व्यक्ति के मन में इस बीज का अंकुरण होना कि हमें निरंतर सुधार की ओर अग्रसर होना है, यही एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और जब कोई व्यक्ति इस काम को ठानता है तो उस व्यक्ति का उत्थान होता है, और यही काम जब एक समुदाय कर लेता है, जब एक संस्था कर लेती है, तो हम ये मान के चले कि सभी संस्थाएं सामूहिक रूप से जो है वो आगे बढ़ने की दिशा में निरंतर अग्रसर होंगी। तो जब भी आप लोगों के बीच में इस तरह के कार्यक्रम में आती हूँ तो मुझे यही सुखद अनुभूति होती है कि विभाग की जो मंशा है, उपलब्धि ये नहीं है कि 211 कॉलेजेस का नैक हो गया है, उपलब्धि ये है कि हमारी सभी संस्थाओं के मन में, सभी संस्थाओं के अंदर एक इस तरह की सामूहिक जागरूकता आई है कि उनको निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होना है, संस्था को अच्छा बनाने के लिए, चाहे वो शैक्षणिक माहौल हो, चाहे अधोसंरचनाओं का विकास हो, चाहे विद्यार्थियों की जागरूकता हो, या विद्यार्थियों के लिए अधिक उद्योग के अवसर प्रदान करना, उनको लाइवलीहुड के अवसर प्रदान करना, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अवसर प्रदान करना, ये जो विविध आयाम है उन सभी की दिशाओं में संस्थाओं के अंदर एक जागरूकता की स्थिति आई है। बहुत सारी संस्थाएं इतनी सुव्यवस्थित, इतनी सुंदर दिखती हैं कि कभी कभी उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये शासकीय नहीं बल्कि किसी निजी उद्योगपति द्वारा संचालित कोई ऐसी संस्था है जिसका कि एकदम प्राइवेट तरीके से दैनिक आधार पर मॉनिटरिंग की जा रही है, नियमित निरीक्षण संरक्षण किया जा रहा है। तो ये सब जो सुधार आए हैं, ये सुधार हमारे लिए गौरव का विषय है। गौरव का विषय सिर्फ ये बात नहीं है कि 211 संस्थाओं का नैक हो गया, गौरव का विषय यह है कि हमारे राज्य में जो शैक्षणिक संस्थान चल रहे हैं उन्होंने अपनी बेहतरी के लिए स्वयं सोचना शुरू कर दिया है। तो ये मेरे लिए यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब संस्थाओं का ये खुद से निश्चय हो गया है तो अब उनको आगे बढ़ने के रास्ते पे कोई रोक नहीं सकता है, और हमारा नेतृत्व या आप किसी और का कोई अलग हो जाए, कोई चेंज हो जाए, उन सब चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। संस्था अपने स्तर पर अपनी उत्कृष्टता के लिए निरंतर काम करती रहेगी। तो इसी कड़ी में आज आपकी ये वर्कशॉप आयोजित की गई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग आज जो आपको टेक्निकल सेशंस में लेक्चर होगा उसका पूरा लाभ लेंगे, और इस जो कार्यक्रम से आपको अनुभव होगा, जो नया ज्ञान अर्जित होगा, उसका उपयोग जो है हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्शन में होगा, हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सुधार होगा। और हम जब भी कुछ ऐसा देखते हैं, कुछ कार्यक्रम में जाते हैं, नई नई बातें पता चलती हैं। जैसे इसके पहले अभी दुर्ग संभाग में ही एक बार NSS का कार्यक्रम हुआ था, तो उस NSS के कार्यक्रम में वहाँ के प्रभारी अधिकारी ने मुझे बताया कि इस शिविर के माध्यम से जितने लोग NSS के कार्यक्रम को यहाँ अटेंड कर रहे हैं, इससे कई गुना ज़्यादा हज़ारों लोग ऑनलाइन इस शिविर की पूरी गतिविधियों का निरीक्षण कर रहे हैं, उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। तो जो नए नए इनोवेशंस हैं, जो टीचिंग लर्निंग की नई प्रोसेस है, वो इसकी ज्वलंत उदाहरण इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। आज आपका वर्कशॉप है, आप जो भी हमारी सीमाएं हैं उनके कारण अगर इस हॉल में 100 लोग उपलब्ध हैं तो इस हॉल से बाहर 150 लोग इस कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं। तो यही नए प्रयोग है। आपको याद होगा जब हमारे यहाँ कोरोना संक्रमण के प्रोटोकॉल के कारण क्लासरूम टीचिंग बंद हुई थी, उस समय आप ही लोगों के सभी के सहयोग से जो संभाग स्तरीय जो ऐप के माध्यम से पढ़ाई हुई, उसमें हमारे हज़ारों बच्चों ने क्लासेस अटेंड की। जबकि हम कितना ये मानते हैं कि छत्तीसगढ़ के नाम पर जैसे ही लोग सुनते हैं तो बाहर बोलते हैं कि अरे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ आधुनिक टेक्नोलॉजी का अभाव है। लेकिन सोचिए ऐसे प्रदेश में भी हमने इस तरह के काम किए और हमारे बच्चों को, हमारी संस्थाओं को इसका लाभ मिला। निरंतर विद्यार्थी संपर्क में रहे। मुझे तो पूरे कोरोना काल में कोई ऐसा महाविद्यालय नहीं होगा जिसने ये संपर्क ना किया हो कि हमारे महाविद्यालय की ओर से इस तरह के नए विषय पर कार्यशाला आयोजित की जा रही है और आप इसके लिए कुछ समय दीजिए। आश्चर्य तो इस बात का है कि जो कार्य भौतिक माध्यम से किया जाना है उन पर भी जो है वर्चुअल माध्यम से कार्यशालाएं आयोजित हुई। और मुझे अच्छी तरह से याद है सरगुजा संभाग का मनेन्द्रगढ़ या शायद चिरमिरी का महाविद्यालय है, उसने 10 दिवसीय योग कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से नेशनल लेवल पर आयोजित किया उसी कोरोना काल में।
और उसमें बहुत सारे लोगों ने भाग भी लिया। तो ये सोचिए कि यही नए नए प्रयोग है। कोई बहुत बड़ा बाहर से आकर के, नासा से आके कोई यहाँ नया प्रयोग आपके लिए नहीं करने वाला है। हम और आप हैं जो हमको आपस में बैठना है, बात करना है और आगे निकल करके अपनी संस्थाओं के लिए कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है। और हमारे अंदर जो ये जज्बा है, यही जो है आगे चल करके हमारे भविष्य में परिवर्तित होगा और एक मूर्त रूप लेगा। मैं हमेशा से ये सोचती हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य पे जो इस तरह का टैग लगा हुआ है कि एक पिछड़ा राज्य है, उस टैग को हटाने में हमारा उच्च शिक्षा विभाग जो है अपनी सक्रिय भूमिका अदा करे और हमारी संस्थाओं से निकलने वाले बच्चे राज्य की बेहतरी के लिए तो अच्छा से अच्छा काम करें और देश के पटल पर और विश्व के पटल पर भी अपने राज्य का नाम रोशन करें। और जब वो ऐसा करेंगे तो उसमें हमारा आपका नाम भले ना आए, लेकिन उस उपलब्धि के पीछे हम लोग अज्ञात रूप से, अदृश्य रूप से हम सभी का योगदान छिपा रहेगा। इसी भावना के साथ मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ, आपकी उन्नति के लिए भी कामना करती हूँ। व्यक्तिगत तौर पर भी आप अपना अच्छा शोध करें, अपने फील्ड में उत्कृष्टता प्राप्त करें और साथ ही साथ अपनी संस्था को भी विकास के, प्रगति के नए पटल तक पहुँचाएं। यही मेरी शुभकामनाएं हैं और ये जो आप लोगों की चेन चल रही है, ये निरंतर चलती रहे। आप सभी वरिष्ठ लोग इधर मंच पर आसीन हैं, उधर आप सामने भी हैं, आप सभी लोग मिल करके पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम की निरंतरता को बनाए रखें। बहुत बहुत आभार और मुझे बुलाने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मैम। आपके स्वप्न को हम सब साकार करने के प्रयासरत रहेंगे लगातार, क्योंकि जो नवाचार है, इनोवेशंस हैं और रिफॉर्म्स जो हैं, उनके माध्यम से ही छात्रों में सकारात्मक विकास होगा। उनके नैतिक मूल्यों और आदर्शों का भी हम विकास कर सकने में सक्षम रहेंगे। मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूँगी हम सभी टीचर्स के लिए। नवाचार हो इस जग में, प्रयासों में आचार्य रहें, शिक्षा सबकी प्रथमतः हो, तर्कों पर भी सभी विचार रहें। तो हम अपने नैतिक मूल्यों को बढ़ाने का प्रयास करें, तर्क के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से अपने छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास हम करते रहें। आज बड़े हर्ष का विषय भी है, इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में हम नवाचार की बात कर रहे हैं, तो 2 नवाचार से संबंधित विमोचन मैडम के करकमलों के द्वारा हमने कराने का सोचा है। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा आयोजित सेमिनार की प्रोसीडिंग्स के लिए मैं वहाँ के प्राचार्य डॉक्टर पी चंद्रवंशी सर और IQAC कोऑर्डिनेटर शैल वर्मा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। इन्होंने 19 अगस्त को होलिस्टिक असेसमेंट इन द लाइट ऑफ NEP 2020 पे सेमिनार आयोजित किया था, जिसका उद्देश्य ये था NEP 2020 के तहत HEI में MDA को लागू करने हेतु इसके बारे में जानकारी और जागरूकता हासिल करना। बहुत सफल ये कार्यशाला रही थी। मैं इस मंच से उन्हें साधुवाद देती हूँ और मैडम का धन्यवाद करती हूँ कि उनके करकमलों से इसकी प्रोसीडिंग्स हुई। हम सभी की तरफ से पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे महाविद्यालय की प्राध्यापिका डॉक्टर रेशमा लाकेश द्वारा लिखित पुस्तक मिलेट्स का भी विमोचन मैडम के करकमलों द्वारा किया जाना है। गौरतलब है यह वर्ष इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स है और मैडम ने उस पर बहुत खूबसूरत किताब लिखी है। उनके साथ उनकी सहलेखिका तबस्सुम अली हैं जो रिसर्च स्कॉलर हैं और साथ में हमारी अतिथि प्राध्यापिका भी हैं। डॉक्टर रेशमा लाकेश लगातार 30 वर्षों से उच्च शिक्षा में कार्यरत हैं। लगभग 68 पेपर उनके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रकाशित हो चुके हैं। उन्हें लगभग इंटरनेशनली 6 अवार्ड्स, नेशनल लेवल पर 2 और स्टेट और रीजनल लेवल पर 8 अवार्ड हासिल हुए हैं। अब तक लगभग उन्होंने 10 किताबें प्रकाशित करवा ली हैं और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर उन्होंने अपना पत्र वाचन किया है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ और उम्मीद रहेगी कि हमारे महाविद्यालय के अन्य प्राध्यापक भी उनसे प्रेरणा लेकर के इस तरह से
किताबों को संग्रहित करें और विमोचन कराएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। और आज मैडम का जन्म दिवस भी है, तो इस मंच से आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। I've dedicated this book to my granddaughter Rihanna, so that the coming generation. Congratulations. So that सबकी तरफ से जोरदार तालियां। बहुत बहुत बधाई सभी की तरफ से। मैं प्राचार्य सर से निवेदन करती हूँ कि हमारे महाविद्यालय की तरफ से आदरणीय मैडम को एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। एक छोटा सा हमारी तरफ से एक यादगार चिन्ह। सर से निवेदन है हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर आनंद सिंह सर को भी एक छोटा सा स्मृति चिन्ह प्रदान करें। धन्यवाद सर। और मैं इस प्रथम चरण के आभार प्रदर्शन के लिए हमारे आईक्यूसी के सदस्य डॉक्टर एन शोएब सर को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी। आज के मुख्य वक्ता कीनोट स्पीकर प्रोफेसर जी घनश्याम जी, जिन्होंने अपनी अतुलित ऊर्जा को छत्तीसगढ़ की उच्च शिक्षा के विकास पे खर्च किया, किंतु उनकी ऊर्जा का क्षय नहीं हुआ, बल्कि उनसे जुड़े तमाम महाविद्यालय के साथ भी ऊर्जित होते चले गए। आज उनके व्याख्यान में हम इनोवेशन और रिफॉर्म्स को सुनेंगे और जो उन्होंने लगातार हम सभी के साथ संपर्क में रह के महाविद्यालयों के विकास के लिए काम किया, उसके लिए उन्हें मैं साधुवाद देती हूँ। और एक उनका परिचय चूँकि समेट पाना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया है कि मैं आपके सामने उसे रख सकूँ। लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस उन्हें है और 102 रिसर्च पेपर्स इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स में आपके छप चुके हैं। लगभग 14 बुक्स आपने लिखी हैं और लगभग 7 लोगों ने आपके अंडर में पीएचडी की डिग्री हासिल की है और 3 स्टूडेंट्स से एमफिल की डिग्री हासिल की है। आपको रिसर्च एसोसिएटशिप बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला द्वारा मिली है। इसके अलावा आप फेलो ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, फेलो ऑफ गाइड ऑफ इंडिपेंडेंट स्कॉलर्स सोशल साइंस इस्काजू कोस्टा रिका इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज ऑफ ह्यूमैनिटी से आप जुड़े हुए हैं। आपने लगभग 163 से ऊपर के टॉक्स जो हैं वो डिफरेंट सेमिनार्स और वर्कशॉप में दिए हैं। कीनोट स्पीकर के रूप में रहे हैं आपने लगभग 132 वर्कशॉप विभिन्न लैंग्वेज एस्पेक्ट पे की हुई हैं, जिसमें लिटरेचर और सॉफ्ट स्किल शामिल हैं। आपने SLQAC के रूप में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा में बहुत लंबे समय तक काम किया और उसी के माध्यम से हमारे महाविद्यालयों ने एक अच्छा ग्रेड प्राप्त किया। और ग्रेड जो भी रहा हो, लेकिन सभी महाविद्यालयों के में परिवर्तन आया, चाहे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या टीचर्स का डेवलपमेंट हो या स्टूडेंट सेंट्रिक प्रोग्राम्स हो।
सभी में आपके दिशा निर्देश के द्वारा हमने काम करने की कोशिश की और छत्तीसगढ़ को एक विभिन्न आयाम दिया। इसके अलावा आप आइसपेल और आइसफील के फाउंडर रहे हैं, जो लगातार अपने प्रत्येक रविवार तो शायद मैं देखती हूँ, उसके अलावा भी लगातार आपके माध्यम से उसमें वर्कशॉप और सेमिनार संचालित होते रहते हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने उन्हें ब्रीफ करने की कोशिश की थी, हालांकि आपका परिचय बहुत लंबा है, लेकिन हम आपको उससे ज़्यादा सुनना चाहते हैं ताकि हमारे आज का जो सेमिनार है वो बहुत अच्छा साबित हो सके। आदरणीय घनश्याम सर।